Good morning, students. The class is 8th subject English. Communicate with Cambridge we are studying, and we are going to do the Unit 6 Section B today, which we completed yesterday. Section 6 is the girl child. We are just reading about the girl child. And section B we are going to read is I kept my tryst with Everest. Tryst with Everest. Tryst with Everest, children. Here we need to understand what does it mean by I keep my tryst. Tryst means, children, a secret meeting between lovers. Means Bachandri Pal, the author, the writer of this text we are going to read today, she loved with the Everest. That's why she used such a very different word to make the title of the chapter. So here again, I keep my tryst with Everest means she says that she has got so many secrets with Everest. Like she went there. So the secrets are there. We are going to read now. We are going to see now what sort of secrets are there with Bachandri Pal, the author, the writer of this text. Right, everyone? So you just see, students, you all need to remain by the end of the lecture, because at the end of the lecture attendance will be taken. Those students remain by the end of the lecture will be marked present. Those students leave in between the lecture, they'll be marked absent. Right, everyone? So let's just read the text. But before that, we have warm-up exercise, which will make us a bit familiar about the text, about the chapter we are going to read further. Mount Everest is literally located at the top of the world, rising 8,848 meters above sea level. माउंट एवरेस्ट जो है वर्ल्ड की सबसे टॉप एवरेस्ट है, टॉप माउंट है जो एवरेस्ट है, सबसे टॉप वर्ल्ड के अंदर, जिसकी हाइट उन्होंने बताई है 8,848 मीटर है समुद्र लेवल से, सी लेवल से. इट वॉज फॉर्म्ड about 60 million years ago. 60 million years ago इसको फॉर्म किया गया था and is located in the Mahalangwar mountain range in Nepal and Tibet. ये नेपाल और तिब्बत के बीच में पड़ता है. महालांगवर माउंटेन की जो रेंज है उसके इन बिटवीन आता है. कंट्री नेपाल और तिब्बत पड़ता है. माउंट एवरेस्ट इज ऑल्सो नोन इन नेपाल एज सागर मंथा. माउंट एवरेस्ट को नेपाल के अंदर सागर मत्था के नाम से जाना जाता है, और जिसका मीनिंग जो होता है उनकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग दैट इज गॉडेस ऑफ द स्काई. गॉडेस ऑफ द स्काई मीन्स वो कहता है कि ये तो जो है स्काई के देवता है, क्योंकि ऊंच स्काई तक गए हुए हैं, बादलों तक गई हुई है इसकी हाइट. एंड इन तिब्बत एज कोम्युलमा, और कॉम्युलमा मीन्स वो कहते हैं द नेम मदर गॉडेस ऑफ द यूनिवर्स. मदर गॉडेस है यूनिवर्स को. सो वाई क्लाइम एवरेस्ट, क्यों एवरेस्ट के ऊपर चढ़ना है? द मोस्ट फेमस आंसर टू दिस क्वेश्चन केम फ्रॉम क्लाइमर जियोर्ज मैलरी. सबसे फेमस जो है, द मोस्ट फेमस आंसर, सबसे फेमस आंसर वो बताती है टू दिस क्वेश्चन केम टू फ्रॉम क्लाइमर. जो सबसे फेमस क्लाइमर हुए हैं वो कहता है जियोर्ज मैलरी, बिकॉज वो कहते हैं क्योंकि इट इज देयर, क्योंकि ये वहां पर है. वेल मोर देन 2,200 people have succeeded
in reaching and returning from the summit, यानी कि summit means होता है the top of the Everest। 2200 लोग जो है ऊपर गए हैं और वहां से नीचे भी आए हैं, ऊंचाई से, उस टॉप से। nearly 200 people have lost their lives attempting the climb। और लगभग वो बताती है कि 200 जो हमारे क्लाइंबर्स रहे हैं उन्होंने अपनी जिंदगी गंवाई है, लाइफ को उन्होंने गंवा दिया है अटेम्प्टिंग करते हुए क्लाइंबिंग को, मतलब ऊपर चढ़ते हुए एवरेस्ट की चोटी पर, राइट। सो वी हैव विद अस टू क्वेश्चंस स्टूडेंट्स, सी व्हाट डू दीज मीन। व्हाट डू यू थिंक कंपेल्स ह्यूमंस टू रिस्क देयर लाइव्स टू कॉन्कर द इम्पॉसिबल। आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है कंपेल्स ह्यूमंस, के जो ह्यूमंस को कंपेल करता है टू रिस्क देयर लाइव्स, कि भाई वो अपनी लाइफ को जो है रिस्क में डाल रहे हैं, टू कॉन्कर द इम्पॉसिबल, यानी कि वो चीज जो कभी पॉसिबल नहीं हो सकती उसको जीतने के लिए वो अपनी जिंदगी को जो है खतरे में डालते हैं, इम्पॉसिबल टास्क को करते हैं। आपको क्या लगता है कि वो क्यों करते हैं, क्या रीजन है इसके पीछे। व्हाट डू यू थिंक कंपेल्स ह्यूमंस, right everyone? So the next one is, what qualities do you think one requires to climb a peak? And now the writer, the author of this text is asking to us, आपको क्या लगता है कि what qualities do you think, आपको क्या लगता है किस तरह की qualities जो है हमें चाहिए पीक पर, चोटी पर चढ़ने के लिए। So let's go to the next slide, see what happens here. Now read an account by Bachandri Pal. Bachandri Pal, a single-minded and a spirited girl, बिल्कुल अकेली, मतलब सिंगल माइंडेड मीन्स वो कहती है अकेला विचार सोचने वाली, और स्पिरिटेड गर्ल जिसके अंदर जो है आत्मविश्वास जो है कूट कूट कर भरा हुआ है, स्पिरिटेड गर्ल जो है वो। बोर्न इन अ रूरल फैमिली ऑफ मॉडरेट मीन्स, वो ग्रामीण इलाके में जो पैदा हुई है, ऑफ मॉडरेट मीन्स, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द समिट, जो फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी थी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर, सबसे जैसे फर्स्ट वुमेन थी वो जो माउंट एवरेस्ट पर गई थी मई 1984, 1984 मई में जो है वो गई थी, और वो इंडिया की पहली वुमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर पहुंचा था, वो पहुंची थी वहां पर। अब now we're going to read the text. See children, what do we find here? I got up at 4 a.m. वो बताती है कि मैं 5 बजे उठी सुबह। मेल्टेड स्नो, जो स्नो थी वो मेल्ट कर रही थी, एंड ब्रूड टी, मेल्टेड स्नो एंड ब्रूड टी मीन्स उसने जो है टी को जो है बनाया, टू मेक टी, उसने चाय बनाई। आफ्टर अ लाइट ब्रेकफास्ट ऑफ अ फ्यू बिस्किट्स, कुछ बिस्किट्स ब्रेकफास्ट करने के बाद, जिसमें वो बताती है ब्रेकफास्ट में उसने कुछ बिस्किट्स को लिया, एंड हाफ अ स्लैब ऑफ चॉकलेट, हाफ अ स्लैब ऑफ चॉकलेट, और उसने हाफ स्लैब चॉकलेट का यूज किया। आई लेफ्ट माई टेंट एट अराउंड 5:30 AM। आई लेफ्ट माई टेंट एट अराउंड 5:30 AM, और 5:30 बजे के लगभग मैंने जो है टेंट को जो है छोड़ दिया, वहां से निकल जाती हूँ। और एंग दोरजी माय रॉप लीडर, अब वो बताती है एंग दोरजी जो थे उसके रॉप लीडर थे, जो उसकी हेल्प किया करते थे रस्सियां बांधने में और रॉप को टाई करने में और आगे बढ़ने में। टू टाई द रॉप्स एंड टू गो अहेड, रॉप को टाई करने में एंग दोरजी जो थे। नो वन एल्स वाज अबाउट, और वहां पर कहती है और कोई नहीं था वहां पर। एंग दोरजी वाज गोइंग टू क्लाइम विदाउट ऑक्सीजन, और एंग दोरजी जो थे बिना ऑक्सीजन के वो क्लाइंब कर रहे थे, विद ऑक्सीजन के, बट बिकॉज ऑफ दिस हिज फीट वुड गेट वेरी कोल्ड, और जिसकी वजह से वो कहता है अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिली तो उसके पाँव जो है बड़े ठंडे हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा कोल्ड। एंड दस wanted to avoid long exposure at heights, and thus, और फिर वो कहते हैं he thus wanted to avoid, और वो जो है अवॉइड करना चाहता था काफी लॉन्ग एक्सपोजर एट हाइट्स एंड अ नाइट एट द समिट कैंप, जो वो समिट कैंप लगा हुआ था वो काफी लंबे समय से जो वो अवॉइड कर रहा था एक्सपोजर को इतनी हाइट के ऊपर जो है, और नाइट में। He had therefore to either get to the peak and back to the south pole,
the same day or abandon the attempt. अब वो बताती है कि उसके पास क्या ऑप्शंस थे. ही हैड देयरफॉर टू इधर गेट, या तो वो जो है पीक पर चला जाए, समिट पर चला जाए एवरेस्ट की, गेट टू द पीक एंड बैक टू द साउथ पोल, और जो है बैक जो है साउथ पोल में चला जाए, वहां पर द नेम ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस एट द पीक बेसिकली. या फिर वो कहती है द सेम डे, और या तो उसी दिन वो वहां चला जाए, या फिर जो है अबेंडन द अटेम्प्ट, जो अटेम्प्ट उसने स्टार्ट किया था, शुरू किया था, वो जो है उसको छोड़ दे. He was keen to start immediately and asked. He was keen to start immediately. बड़ा उत्साही था वो उसको immediately start करने के लिए. And asked, और मुझसे पूछता है if I would like to go with him, कि भाई अगर मैं उसके साथ जाना चाहूँ जा सकती हूँ. वो उसने मुझसे पूछा कि भाई क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगे. Going to the top from the south col, कि भाई साउथ कोल से ऊंची टॉप पर जाना, एंड बैक इन अ डे वुड बी स्ट्रेनुअस, और सेम डे जो है उसको वापस आना वहां पर. स्ट्रेनुअस मीन्स रिक्वायरिंग ग्रेट एनर्जी एंड एफर्ट, जिसके लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी और एफर्ट की जरूरत थी. एंड टफ, एंड देयर वाज द रिस्क, और वहां पर जो है कुछ रिस्क था, क्योंकि it was requiring great effort and energy, because the same day they were supposed to go to South Pole and come back. That means it was requiring some extra effort and energy, right? बचंद्री पाल ने ये बात बोली. Now was the risk of Ang Dorgi turning back if his feet got too cold, because he was going there without oxygen. So क्या होता है कि that without oxygen जो उसके पाँव थे वो कहते हैं काफी चिल्ड हो जाएंगे, कोल्ड हो जाएंगे. I however had full confidence in Ang Dorji, और वो कहती है कि भाई मुझे जो है ना उसके ऊपर फुल कॉन्फिडेंस था एंग दोरजी के ऊपर, as well as in my stamina and climbing capability, और जो मेरा स्टेमिना था और मेरी कैपेबिलिटी थी. स्टेमिना मीन्स जो उसके अंदर एनर्जी थी, जो पावर थी, और चलने की जो उसकी योग्यता थी, कैपेबिलिटी थी, वो कहती है मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था. Besides, no one else was ready to move at that time, और इसके अलावा वो कहती है कि उसके साथ जाने के लिए कोई भी रेडी नहीं था. उस समय की बात है कि उसके साथ जाने के लिए कोई भी रेडी नहीं था उस टाइम. At 6:20, when Ang Dorji and I stepped out from the south pole, जब मैं, वो कहती है कि एंग दोरजी और मैं स्टेप्ड आउट फ्रॉम द साउथ पोल, कि भाई हम वहाँ से साउथ पोल से बाहर निकलते हैं. इट वाज अ परफेक्ट डे, बड़ा अच्छा दिन था. देयर वाज अ जेंटल ब्रीज, बड़ी अच्छी अच्छी हवाएं चल रही थी. बट द कोल्ड वाज इंटेंस, लेकिन ठंड जो थी वो बहुत गहरी थी, बहुत डीप थी. द कोल्ड वाज डीप. डीप रेफर्स टू टू मच, ह्यूज जिसकी हम बात करते हैं, कि जो कोल्ड थी वो काफी गहरी थी, इंटेंस थी. I was, however, warm in my well-insulted climbing gear. Means these are sort of clothes or the things worn by the climbers, children. जो climbers जो है डालते हैं, तो वो कहती है भाई मैं बिल्कुल परफेक्ट थी. We climbed unroped. Unroped means वो रास्ता जिसपे rope की जरूरत थी, हम चढ़ गए. एंग दोरजी सेट अ स्टेडी पेस, एंग दोरजी ने जो है एक रसीदा रास्ता तैयार किया. बट आई हैड नो डिफिकल्टी कीपिंग अप विद हिम, और वो कहती है परंतु जो है मेरे पास मुझे कोई किसी तरह की डिफिकल्टी नहीं थी इतनी कीपिंग अप विद हिम, कि भाई मैं अपने आप को मैनेज करके मेंटेन करके चलूं. द स्टीप फ्रोजन स्लोप्स वर एज हार्ड एंड ब्रिटल एज शीट्स ऑफ ग्लास. The steep frozen slopes were as hard. Steep frozen slopes means वो कहती है कि जो steeps वो यूज कर रहे थे वो इतनी फ्रीज कर चुकी थी, जम चुकी थी, हार्ड हो चुकी थी. एंड ब्रिटल, ब्रिटल मीन्स हार्ड, इजीली ब्रोकन. वो इतनी हो चुकी थी कि वो इजीली टूट जाती. Some plastics are there, children, in the too much cold these become very hard. हार्ड होने की वजह से वो इजीली ब्रेक हो जाती हैं, टूट जाती हैं. सो ये जो स्टिप्स की बात कर रहे हैं, दीज आर सॉर्ट ऑफ थिंग्स बेसिकली एज शीट्स ऑफ ग्लास, जैसे कि ग्लास की शीट्स होती हैं. वी हैव टू यूज द आइस एक्स, और हमें आइस एक्स को यूज करना पड़ा. आइस एक्स आई सपोज
जो हमारी कुल्हाड़ी होती है जो एकदम से मारने पर आइस के अंदर चली जाती है, दैट इज कॉल्ड आइस एक्स, एंड हैड टू किक रियली हार्ड टू गेट द फ्रंट टीथ ऑफ द फ्रैम्पन्स टू बाइट इनटू द फ्रोजन सरफेस। और वो कहता बड़ा जोर से हार्ड से उसको जो है किक करना पड़ा फ्रंट टीथ ऑफ द क्रैम्पन्स, उसके फ्रंट पार्ट को जो है, ताकि वो उसको अच्छे से बाइट करके अंदर चला जाए इनटू फ्रोजन सरफेस, जो कि सरफेस जो है जमी हुई थी उसके अंदर चला जाए, ताकि वो उसको रेस्पाइट कर सके, सहारा ले सके। आई टुक एवरी स्टेप वेरी डेलिबरेटली, जानबूझकर कहती है मैंने हर स्टेप को लिया ऑन द डेंजरस स्ट्रेचेस, जो डेंजरस स्ट्रेचेस थे उन पर वो बताती है कि मैंने जानबूझ करके इन कदम्स को वहां पर लिया, डेलिबरेटली डेंजरस स्ट्रेचेस इन लेस देन 2 hours। और अब जो है वो बताती है कि इन लेस देन 2 hours, 2 घंटे से कम समय में, कहती है वो, वी रीच द समिट कैंप, और हम जो है समिट कैंप पर जो है पहुंच गए, वी रीच द समिट कैंप। एंड दोरजी लुक्ड बैक, और दोरजी जो है 2 घंटे से कम समय में, देखो साउथ पोल से जो है वो समिट टॉप पर पहुंच जाते हैं, और दोरजी जो थे लुक्ड बैक, पीछे देखते हैं, आस्क्ड इफ आई वाज टायर्ड, और उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, I will see in less than 2 hours we reached the summit camp, हम 2 घंटे से कम समय में जो है समिट कैंप पर पहुंच गए। एंड दोरजी लुक्ड बैक, और दोरजी जो है दोरजी पीछे मुड़ करके देखते हैं और कहते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, एंड आस्क्ड इफ आई वाज टायर्ड, और मुझसे पूछा कि मैं कहीं थकी हुई तो नहीं थी। आई रिप्लाइड, मैंने रिप्लाई किया नो। टू हिज सरप्राइज एंड डिलाइट, उसके सरप्राइज से और डिलाइट से, he told me that the earlier summit party had taken 4 hours, और उसने बताया कि जो हमसे पहले जो अलग पार्टी आई थी, जो वो ऊपर गई थी, बड़ा डिलाइटेड होकर के, खुश होकर के बताते हैं, told me that the earlier summit party had taken 4 hours to reach the summit camp and added that, और वो बताता है कि उनको 4 घंटे लगे थे वहां पर पहुंचने के लिए, रीच पर, टॉप पर पहुंचने के लिए। एडिड दैट इफ वी कुड कीप आवर प्रेजेंट पेस, अगर हम अपने प्रेजेंट पेस को मेंटेन करते हैं, वॉकिंग को मेंटेन करते हैं, प्रेजेंट पेस मींस टू व्हाट स्पीड दे वर जस्ट गोइंग, के किस स्पीड से वो जो है आगे बढ़ते जा रहे थे, अगर उसको हम मेंटेन करते हैं, वी वुड बी ऑन द समिट बाय 1 PM, और वो बताता है कि भाई 1 बजे तक जो है हम समिट पर पहुंच जाएंगे। लाटू दोरजी माय रोप मेट वाज फॉलोइंग अस, और एक अनदर क्लाइंबर वाज देयर, लाटू दोरजी जो थे वो कहते हैं वो हमें फॉलो कर रहे थे, एंड कोट अप विद अस व्हेन वी रेस्टेड, और हमें उन्होंने जो है पकड़ लिया, मीन्स हमारे साथ आ गए वो जब हम वहां पर रेस्ट कर रहे थे, बिलो द साउथ समिट, साउथ के जस्ट समिट पर। आफ्टर ड्रिंकिंग सम टी, कुछ चाय पीने के बाद, वी मूव्ड ऑन, और हम आगे बढ़े। लाटू हैड ब्रॉट अ नाइलॉन रॉप, लाटू जो है नाइलॉन की रॉप लेकर, रस्सी लेकर के आए थे। सो एंग दोरजी एंड आई रॉप्ड अप, एंग दोरजी और मैंने जो है उसको बांधा, टाई किया, रॉप्ड अप, व्हाइल लाटू वॉक्ड इन द मिडल, और लाटू जो थे वो मिडल में चल रहे थे। Wait a minute, students, just hold for a minute. So now Lahatu had brought a nylon rope, वो जो लाटू थे वो नायलॉन की रस्सी लेकर के आए थे। सो एंग दोरजी एंड आई रोप्ड अप, और हमने जो है उसको रॉप किया। वाइल लाटू वॉक्ड इन द मिडल, और लाटू जो थे बीच में चलते रहे हमारी, होल्डिंग द रॉप, रस्सी को पकड़े हुए, विद वन हैंड, एक हाथ के साथ, मोर फॉर बैलेंस देन सिक्योरिटी, बैलेंस को लेकर के, सिक्योरिटी के साथ वो बताते हैं कि वो चलते रहे, बैलेंस देन सिक्योरिटी। Well, students, that's enough for today's lecture.
rest because we cannot complete the lecture today, this chapter, because it will be left. So let's just keep so that we can complete this text tomorrow. So see, any one of you who wants to ask any question related to the text we have studied so far today. Now I'm giving you time. If any one of you feel that you want to ask any question, can raise your hand. I'll be there to help you people. If you find any doubt, any difficulty, you still have 2-3 minutes left so that you can put questions and you will be helped shortly.